Hello all GATE CS aspirants. I'm Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of theory of computation. In this session, we'll be talking about Turing machines. More specifically, we'll be talking about countability. You might be wondering that you already know counting, but we'll see a different perspective in this session. So let's see. So what we saw in the previous 15 sessions are the regular languages. We also talked about deterministic context-free languages. We talked about context-free languages. We talked about context-sensitive languages. We talked about recursive languages and recursive enumerable languages. We saw that there are grammars which generate these languages. Then we saw automata which accept these languages. Now, few interesting questions which arise are there languages beyond recursive enumerable languages? That is there a world beyond recursive enumerable languages, and how big is that world? We'll answer all these questions in this session. If I want to give you the hint, there are languages beyond recursive enumerable languages. These are called non-recursive enumerable languages. This world is much more bigger than the world which we already know, just like our universe. Alright, so we'll understand this in this session. So before we go towards that, we need to understand the concept of countability of the sets. So let's see briefly what are the kinds of sets that we have. So we have finite sets, we have infinite sets. The finite sets are definitely going to be countable, and the infinite sets can be countable as well as uncountable. So what is the perspective that I want to give you is that the infinite sets are of two types. One is countable infinity and other is uncountable infinity. If I want to give you the examples of a countable infinite set, is the set of natural numbers, is the set of odd numbers, is the set of even numbers. All these are countable infinite sets. अगर मैं बात करूं uncountable infinite sets की, तो एग्जाम्पल है हमारे रियल नंबर्स. अगर आप रियल नंबर्स को देखेंगे 1 से 2 के बीच में ही there are infinite real numbers which you can produce. So if we talk in layman terms, then these real numbers is a much more bigger set than the set of natural numbers. In between every two real numbers, that is, let's say 2 and 3, there are infinite real numbers that we have. Right? So that kind of infinity is known as uncountable infinity, and the infinity which is there in the set of natural numbers or odd numbers or even numbers, that is basically a countable infinity. Alright? So the most important question which arises now is, how do we prove that a set is countable? आप कैसे प्रूव करेंगे कि जो सेट आपको दिया गया है वो काउंटेबल है? Let us see and understand this. यहां पे मैं जब काउंटेबल की बात कर रहा हूं, मैं काउंटेबल इनफिनिट सेट्स की बात कर रहा हूं. अगर फाइनाइट सेट की बात करें, वो तो हमेशा ही काउंटेबल रहेगा. अगर किसी सेट में 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट है, वो तो हमेशा से ही काउंटेबल है. बात यहां पर हो रही है कि काउंटेबल इनफिनिट सेट कौन से हैं, राइट? उनको कैसे प्रूव किया जाए कि वो काउंटेबल इंफिनिट है. मैंने एग्जांपल्स क्या दिए? सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ये सारे के सारे काउंटेबल इंफिनिट सेट्स हैं. जैसे कि बात करें, अब पहले डेफिनेशन समझते हैं. अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल. हम कब कहेंगे एक सेट काउंटेबल है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, अगर सेट के सारे एलिमेंट्स दे कैन बी पुट इन 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अगर नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ अगर हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं, तब हम बोलेंगे कि ये जो है मेरा सेट जो है वो काउंटेबल सेट है. दैट इज इट इज अ काउंटेबल इनफाइनाइट सेट. ठीक है. अब हम क्या देख रहे हैं? हमने सबसे पहले जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट आपको समझाने के लिए मैं फिर से बताता हूं. हम क्या कर रहे हैं? हम काउंटेबिलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं. हमने देखा कि सेट्स जो होते हैं या तो फाइनाइट भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं. अगर हम फाइनाइट सेट्स की बात करें
तो जैसे जो काउंटेबल सेट्स, जो फाइनाइट सेट्स हैं वो हमेशा काउंटेबल रहेंगे, लेकिन अगर हम इनफाइनाइट सेट्स की बात करेंगे तो वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल इनफाइनाइट दोनों हो सकते हैं। अब हम कैसे प्रूव करें कि एक सेट काउंटेबल इनफिनिट है और हम कैसे प्रूव करें कि एक सेट अनकाउंटेबल इनफिनिट है, वो अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सारा पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं हम ये सारी एक्टिविटी? हमें ये देखना है कि इज देयर अ वर्ल्ड बियॉन्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस एंड हाउ बिग इज दैट वर्ल्ड? द आंसर इज यस, देयर इज अ वर्ल्ड, बट व्हाट वी आर एंड दैट वर्ल्ड इज मच मोर बिगर देन द वर्ल्ड ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। इस चीज को प्रूव करने के लिए हमें ये सारी बेसिक थ्योरी की जरूरत है। ऑलराइट, तो अभी समझते हैं इसको कि कैसे हमने एक सेट को काउंटेबल प्रूव किया। हमने देखा कि अगर हम इसे 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर से कर पाएंगे, अगर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, तब हम इसे बोलेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट इज अ काउंटेबल सेट। सॉरी। देन बात करें 1-to-1 मैपिंग, दैट इज इंजेक्टिव मैपिंग। इंजेक्टिव होगी, 1-to-1 मैपिंग इज कॉल्ड इंजेक्टिव मैपिंग। 1-to-1 होना चाहिए, ऑन टू होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें बाइजेक्टिव या सर्जेक्टिव मैपिंग नहीं चाहिए, सिर्फ एक इंजेक्टिव मैपिंग चाहिए। आइए देखते हैं इसको एक एग्जांपल से समझें। बात करते हैं सेट ऑफ ऑल रियल इवन नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को हमने पहले ही मान लिया कि दैट इज बेसिकली अ काउंटेबल सेट। अगर मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस इवन नंबर्स का सेट कर पाया नेचुरल नंबर्स के साथ, तो मैं बोल सकता हूं मेरे सेट ऑफ इवन नंबर्स जो है वो काउंटेबल हैं। कैसे करेंगे? जैसे कि बात करें अगर हम नेचुरल नंबर्स की, तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 लेट्स से। और इवन नंबर्स की बात करूं तो मैं 0 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो कैसे मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस करूं? तो मैं क्या कर सकता हूं, ये अगर मेरा नेचुरल नंबर है तो मैं क्या करूंगा, नेचुरल नंबर मान लो मेरा i है, तो मैं इसको i-1 करके अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 मुझे क्या दे देगा, i-1 इज 0, 0 इंटू 2 इज 0, आई विल गेट दिस नंबर। 2 मुझे कैसे मिलेगा, 2 मुझे कैसे मिलेगा, i is 2, 2 minus 1 is 1, 1 into 2 is 2, I will get it like this. Similarly 3 minus 1 is 2, 2 into 2 is 4. Similarly 4 minus 1 is 3, 3 into 2 is 6 and so on. तो मैंने एक 1-to-1 correspondence establish कर दिया है, तो मैं ये बोल सकता हूं set of all even numbers are countable. ठीक है, अब बात करें सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। अगर मैं ओड नंबर्स की बात कर रहा हूं तो क्या ये सेट भी काउंटेबल इनफाइनाइट है या नहीं है, ये हमें देखना है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। तो अगर मैं ओड नंबर्स को लिखने की कोशिश करूं, लेट मी टेक अ सेपरेट स्लाइड। ओड नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिट। एंड अगर नेचुरल नंबर्स की बात करी जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू। अब मैं कैसे जनरेट करूंगा इससे मुझे ये नंबर जनरेट करना है, एक मैपिंग एस्टैब्लिश करनी है नंबर्स के बीच में। तो ये कैसे जनरेट हो सकता है, अगर मैं इसको लिख दूं 2 into i-1 वेयर i बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, तो कैसे बनेगा 2 into i-1। So basically 1 into 2 minus 1 is 1, I will get this, alright। अगर बात करें इसकी तो 2 into 2 4 minus 1 is 3। Similarly 3 into 2 6 minus 1 5, 4 into 2 8 minus 1 7, 5 into 2 10 minus 1 9 and so on and so forth। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मेरे को एक 1-to-1 कोरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश करना है विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं ये कर पाता हूं तो मैं ये बोल पाऊंगा कि मेरा जो सेट है वो काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सो इस तरह से हम नेचुरल नंबर्स का प्रूव कर सकते हैं। अब आता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इस तरह का कोरेस्पॉन्डेंस हम नहीं बना सकते। रियल नंबर की बात करेंगे, आप 2 से 3 के बीच में ही इनफाइनाइट नंबर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो मैपिंग पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट है, नेचुरल नंबर्स का सेट भी इनफाइनाइट है, लेकिन रियल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है और नेचुरल नंबर्स का सेट जो है वो काउंटेबल इनफाइनाइट है। और इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट में हम ये प्रूव करने वाले हैं कि जो सेट ऑफ लैंग्वेजेस रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस के बाहर हैं, वो जो है वो उनका जो सेट है, अगर हम उस सेट की बात करें, वो सेट जो है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट निकलेगा। ठीक है, अभी शायद आपको ये चीज बहुत अच्छे से नहीं समझ में आएगी, मैं थोड़ा सा प्रूफ स्केच आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल्स देता हूं और फिर मैं कंप्लीट प्रूफ स्केच आपको प्रोवाइड करूंगा। ऑलराइट, तो इसको देखते हैं।
और इसमें हमने क्या देखा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स मैंने बोला दिस इज नो अनकाउंटेबल, ये प्रूव कर दिया, ये काउंटेबल है, ये भी प्रूव कर दिया, और ये भी काउंटेबल है, प्रूव कर दिया। अब सेट ऑफ ऑल क्वोशंट्स, क्वोशंट्स क्या है इसको एक बार थोड़ा सा समझते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेट ऑफ ऑल क्वोशंट्स की बात कर रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, ऑलराइट। सो सेट ऑफ ऑल क्वोशंट्स, क्वोशंट्स क्या होते हैं, पहले तो क्वोशंट्स को समझे क्या होते हैं। क्वोशंट्स क्या है, एनी नंबर इन द फॉर्म p by q where p belongs to natural number ये and q also belongs to natural number, these are all quotients। अब इन क्वोशंट्स को हमें मैप करना है टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं ये कर पाया, अगर मैं 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर पाया, तो मैं ये बोल सकता हूं कि क्वोशंट्स का सेट भी एक काउंटेबल सेट है। लेकिन एक तरीके से जिस तरह से अभी तक हमने समझा है, इस तरह से 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस निकालना इजी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर जनरेट करना चाहूं, 1 by 1 belongs to this, 1 by 2 belongs to this, 1 by 3 also belongs to this, 1 by 4 also belongs, 1 by 5 also belongs, 1 by 6 and up to, similarly 2 by 1 also belongs to this, 2 by 2 also belongs to this, 2 by 3 also belongs to this, 2 by 4 also belongs to this, 2 by 5 also belongs to this, and so on and so on. Similarly 3 by 1, 3 by 2. So this is again an infinite set, we have to prove that it is countable। but जो डेफिनेशन हमने अभी देखी 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस वाली, उससे डायरेक्टली सोचने की कोशिश करें तो हम बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे कॉरेस्पॉन्डेंस। तो हम एक बेटर डेफिनेशन देते हैं जिससे हम ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव कर पाएंगे। ऑलराइट, तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल if there exists an enumeration method, मतलब हम enumeration कर पाएं। enumeration क्या है, हम एक प्रोसेस लिख पाएं जिससे हम we can write an enumeration method using which all the elements of the set can be generated। अगर हम एक मेथड लिख सकते हैं जिससे एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स उस सेट के जनरेट हो जाएंगे, तब मैं कहूंगा वो सेट जो है फाइनाइट इट इज इनफाइनाइट काउंटेबल, इट इज इनफाइनाइट काउंटेबल, ऐसा मैं तब बोल पाऊंगा। ठीक है, अब देखें, एंड फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि प्रोसेस है तो हम बोल पाएंगे, नहीं, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड फॉर एनी पर्टिकुलर एलिमेंट विच यू आर प्रोड्यूसिंग इट टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू जनरेट दैट एलिमेंट। मतलब आप स्पेसिफिकली मुझे बता पाएंगे कि कौन से स्टेप में वो नंबर जनरेट हो रहा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ए सेट इज सेड टू बी काउंटेबल, दैट इज इनफाइनाइट काउंटेबल। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, यहां पे हम इनफाइनाइट काउंटेबल सेट्स की बात कर रहे हैं, हम फाइनाइट काउंटेबल सेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फाइनाइट सेट्स तो हमेशा से काउंटेबल होते हैं। हम इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अ सेट इज सेड टू बी काउंटेबल कब बोलेंगे, जब हम एक इन्यूमरेशन मेथड लिख सकते हैं जिसके थ्रू सारे एलिमेंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। और किसी भी एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैं क्लियरली बता सकता हूं कि वो उस इन्यूमरेशन मेथड के कौन से स्टेप में जनरेट होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट व्हाट पॉइंट दैट एलिमेंट विल बी जनरेटेड, एट विच स्टेप दैट एलिमेंट विल बी जनरेटेड, आई शुड बी एबल टू टेल। सिर्फ इन्यूमरेशन लिख देने से नहीं होगा, राइट? और आगे पढ़ते हैं इसे, द फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन टू जनरेट एन एलिमेंट कैन बी यूज्ड एज इट्स इंडेक्स एंड अ मैपिंग इनटू द नेचुरल नंबर। जिस स्टेप पे वो जनरेट हुआ वो एक नेचुरल नंबर ही होगा, वो स्टेप, वही नेचुरल नंबर उसकी मैपिंग हो गई सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं कि हर नंबर का एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में आप बता पाएंगे कौन से नंबर ऑफ स्टेप में वो जनरेट हुआ। ठीक है, वही नंबर ही उसकी मैपिंग है नेचुरल नंबर्स के साथ। तो ये एक और डायमेंशन है इस बात को समझने का, टू एस्टैब्लिश द 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो कैसे आप नेचुरल नंबर्स के साथ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ये एक तरीका है, इससे चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, आप इजी तरीके से ये चीजें कर पाएंगे। ऑलराइट, आइए देखते हैं सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे हमें यह समझना है कि हमने बोला इन्यूमरेशन मेथड, क्या डिफरेंस है इन्यूमरेशन मेथड में और एल्गोरिथम में? एल्गोरिथम हमेशा हॉल्ट होगा, हमेशा रुकेगा और अपना आउटपुट देगा। इन्यूमरेशन माइट नॉट स्टॉप, इट माइट गो अप टू इंफिनिटी। ठीक है, इन्यूमरेशन माइट गो अप टू इंफिनिटी बट एन एल्गोरिथम हैज टू स्टॉप। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, भले ही मेरा इन्यूमरेशन इंफिनिटी तक जाए
बट मुझे ये हमेशा पता लगे कि मेरा एलिमेंट कौन से स्टेप में जनरेट होगा। एवरी एलिमेंट यू शुड बी एबल टू टेल इन विच स्टेप दैट एलिमेंट हैज बीन जनरेटेड। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं इस बात को। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। इवन नंबर्स के लिए क्या मैं न्यूमरेशन मेथड दे सकता हूं? बहुत सिंपल है, अभी हमने देखा मैपिंग के अंदर भी, दोबारा से देखें तो क्या मैं लिख सकता हूं फॉर i इज इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी i लेस देन, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा सी सिंटेक्स अगर यूज करना चाहूं, अप टू y प्लस प्लस, अगर मैं ये बोलूं ये n इंफिनिटी तक जाएगा मेरा, जो भी मैक्सिमम नंबर मैं ले सकता हूं। तो मैं कैसे जनरेट करूं इवन नंबर्स को? तो आई विल प्रिंट, ठीक है, मैं एग्जैक्ट सिंटेक्स नहीं लिख रहा हूं, प्रिंट क्या करना है मुझे, प्रिंट एफ एंड ऑल यू कैन राइट। क्या प्रिंट करूं मैं? i minus 1 into 2. So this is how I can generate। तो आपको ये पता लगेगा कि कौन से स्टेप में मेरा कौन सा इवन नंबर जनरेट हो रहा है। तो देयर इज ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, सिमिलरली अगर और नंबर्स की बात करूंगा तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ i इंटू माइनस 1। ठीक है, मतलब बेसिकली दैट इज i माइनस 1 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू i माइनस 1, इससे जनरेट हो जाएगा। तो ये भी डन है, ये भी डन है। रियल नंबर्स हमने देखा कि हम 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं। रियल नंबर्स को हम इन्यूमरेट, भले ही मैं एक मेथड लिख दूं कि इन्यूमरेट करने का, बट आप ये समझने की कोशिश करें कि रियल नंबर्स को अगर मैं इन्यूमरेट करने की कोशिश भी करूं, रियल नंबर्स को इन्यूमरेट करने की कोशिश भी करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले जनरेट किया 1, फिर किया 1.001, फिर हम मान लीजिए जनरेट कर रहे हैं 1.01, देन 1.00001, बीच में 1.001 एंड सो ऑन। अब इसमें मेरा 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, ये भी तो इंफिनिटी तक जाएगा। तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ इन्यूमरेशन तो भले ही मैं लिख पाऊं यहां पर, लेकिन मैं ये तो बिल्कुल नहीं लिख सकता कि कब मेरा, मैं नहीं बता सकता हूं कि कब मेरा 2.0 कब जनरेट होगा। तो इसलिए वी कैनॉट एस्टैब्लिश दिस। ठीक है, वी कैनॉट एस्टैब्लिश दिस इन द केस ऑफ रियल नंबर्स। तो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है, लेकिन ये काउंटेबल है, इसको इस मेथड से हम बहुत इजीली कर सकते हैं। That is writing an enumeration method and then telling in finite number of steps कि कब एक एलिमेंट जनरेट होगा। आइए देखते हैं, इस बात को भी समझने की कोशिश करें क्वोशंट्स के केस में। ठीक है, तो क्वोशंट्स के केस में अगर मान लीजिए मैं सारे क्वोशंट्स को ऐसे लिखूं कि पहले आप न्यूमरेटर के तरीके से करें, न्यूमरेटर के ऑर्डर में सॉर्ट कर दें। ठीक है, डिनोमिनेटर को फिक्स कर दें और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर में चलें। तो कैसे चलेंगे? मान लें डिनोमिनेटर मेरा 1 फिक्स है, 1/2, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1 एंड सो ऑन। जब ये हो जाए तो फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को चेंज कर दूंगा और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर फिर से 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 एंड सो ऑन, और इसी तरीके से चलता रहूंगा। बट इस मेथड में भले ही मैंने इन्यूमरेशन फिर से कर दिया, लेकिन क्या मैं ये बता सकता हूं मेरा 1/2 कब आएगा? क्योंकि पहले तो ये सारे एलिमेंट जनरेट होंगे और ये चीज इंफिनिटी तक जा रही है, तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में नहीं बता सकता ये एलिमेंट कब आएगा। तो इसलिए इस तरीके से तो हम नहीं कर सकते। अगर मैं नेक्स्ट मेथड में ऐसा करूं, अभी मैंने क्या किया? डिनोमिनेटर फिक्स किया। अगले मेथड में मैं क्या करता हूं? अभी डिनोमिनेटर फिक्स है, नेक्स्ट मेथड में मैं न्यूमरेटर फिक्स कर देता हूं। ठीक है, मान लीजिए 1, तो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 एंड अप टू 1/6 अप टू इंफिनिटी। देन उसके बाद मैंने क्या जनरेट कर दिया? 2/1, 2/2, 2/3 एंड सो ऑन, 2/4 अप टू इंफिनिटी एंड देन सो ऑन, 3/1, 3/2, 3/3, 3/3 राइट, 3/3, 3/4 एंड सो। तो क्या इस तरीके से मैं ये बता पाऊंगा ये 2/1 मेरा कब आएगा? पहले वाले ही नंबर्स इनफाइनाइट हैं, तो मैं कब बताऊंगा कि मेरा 2/1 आएगा? 2/1 मेरा इनफाइनाइट स्टेप्स के बारे में बाद आएगा। जबकि मैंने क्या बोला? इन्यूमरेशन मेथड आपको बता पाए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कि वो मेरा नेक्स्ट एलिमेंट कब आने वाला है। तो ये भी यहां पे नहीं वर्कआउट कर रहा। तो हम क्या करेंगे? एक नया मेथड सीखते हैं। क्यों ना हम सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बेसिस पे चले।
डिनोमिनेटर के बेसिस पे हम एलिमेंट्स को जनरेट करें एंड देन सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरेटर। कैसे? अब जैसे मैंने बोले दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों का सम क्या होगा, मिनिमम सम, दोनों 1 by 1 हो तो 2, तो पहले हम 2 वाला जनरेट करेंगे, तो मेरे को क्या मिल गया 1 by 1, इसमें और कोई नंबर ही नहीं है। अब अगर मैं सम 3 की बात करूं, दैट इज p plus q, that is sum of natural number, sum of numerator plus denominator is p plus q and then these are arranged with the numerator। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 के अंदर मान लीजिए मेरे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे, 2 plus 1 is 3, 1 plus 2 is also 3, 2 plus 1 is also 3, that's it, these are the two numbers। कैसे जनरेट करूंगा, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूमरेटर में जाऊंगा, फर्स्ट दिस इज माय फर्स्ट नंबर, दिस इज माय सेकंड नंबर, दिस इज माय थर्ड नंबर, ऑलराइट। नाउ मान लो 4 जनरेट करना है, 4 कैसे जनरेट करेंगे, 4 सम करना है तो 1 by 3 एक पॉसिबिलिटी है, 2 by 2 एक पॉसिबिलिटी है, देन 3 by 1 एक पॉसिबिलिटी है। ऑर्डर क्या रहेगा, इसी ऑर्डर में, दिस इज माय 4th नंबर, दिस इज माय 5th नंबर एंड दिस इज माय 6th नंबर, दिस इज माय 5th नंबर एंड दिस इज माय 6th नंबर एंड सो ऑन। अब मैं बहुत क्लियरली बता सकता हूं आपको कि कौन से स्टेप में एक नंबर जनरेट होगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको पूछता हूं 5 by 1 कब जनरेट होगा, तो आपको क्या देखना है, दैट इज सम मेरा 6 है, तो जब सम 6 के लिए हर स्टेप में, जैसे यहां पर सम 2 के लिए एक एलिमेंट है, सम 3 के लिए 2 एलिमेंट्स हैं, सम 4 के लिए 3 एलिमेंट्स हैं, सम 5 के लिए ऐसे 4 एलिमेंट्स होंगे और सम 6 के लिए 5 एलिमेंट्स होंगे, और उन 5 एलिमेंट्स में ये लास्ट एलिमेंट होगा। आई कैन क्लियरली टेल द इंडेक्स एट विच दिस एलिमेंट विल बी प्रोड्यूस्ड। सो देयरफॉर दिस इज द करेक्ट इन्यूमरेशन मेथड। मैंने इन्यूमरेट भी कर दिया और फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में बता सकता हूं मैं कि वो एलिमेंट कब आएगा। तो इसलिए द सेट ऑफ क्वोशिएंट्स इज काउंटेबल इनफिनिट। That's all. All right? तो set of quotients is going to be countable infinite। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने जो चीज है वो प्रूव करके दिखाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना अंडरस्टैंडिंग के बाद क्या हम कुछ चीजें प्रूव कर सकते हैं। अब हम अपने कंटेक्स्ट पे जाते हैं। कहां पे थे हम, टीओसी में थे। ये तो काउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े, हम दोबारा से टीओसी पे जाते हैं। हम किस लिए चले थे आज के सेशन में, हम चले हैं ये प्रूव करने कि इज देयर अ वर्ल्ड आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, पर्पस याद रहना चाहिए, उसके बाद हम साथ साथ चीजें करते जा रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं, इज सिग्मा स्टार काउंटेबल। आगे भी टीओसी सिग्मा स्टार। ठीक है, क्या सिग्मा स्टार काउंटेबल है, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, इज देयर अ इन्यूमरेशन मेथड थ्रू विच आई कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सिग्मा स्टार एंड आई कैन टेल इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स व्हेन दैट एलिमेंट विल बी जनरेटेड, तो मैं बोल पाऊंगा सिग्मा स्टार मेरा काउंटेबल है। ठीक है, तो अब क्या मेथड लगाएं। अगर सिग्मा स्टार की बात करूं तो इसमें क्या आता है, एप्सिलॉन आता है, ए आता है, बी आता है, ए बी आता है, बी ए आता है, ए आता है, बी बी आता है एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो मुझे यह प्रूव करना है क्या ये काउंटेबल इंफिनिटी है या नहीं है। ठीक है, कैसे प्रूव करें हम इस चीज को, तो देखते हैं। इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या मैं इन्यूमरेशन मेथड ऐसा बना दूं कि क्या आप डिक्शनरी ऑर्डर में चलें। अगर आप डिक्शनरी ऑर्डर में जाते हैं तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि वो तो कुछ है ही नहीं, उसके बाद ए आएगा, फिर डबल ए आएगा, फिर ट्रिपल ए आएगा, फिर 4 एज आएंगे, फिर 5 एज आएंगे और उसके बाद एज ही बढ़ते चले जाएंगे और फिर पता नहीं बी कब आएगा। तो ये मेथड तो नहीं चलेगा। अगर मैं डिक्शनरी ऑर्डर में जाने की कोशिश करूं तो मैं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में तो नहीं बता पाऊंगा कि मेरा एलिमेंट कब प्रोड्यूस होगा। डिक्शनरी ऑर्डर से तो मेरी बात नहीं बन रही, तो मैं कैसे करूं। तो और मेथड सोचते हैं। अभी जैसे हमने p by q में लगाया, तो क्या ना हम स्ट्रिंग लेंथ के बेसिस पे सॉर्ट करें और देन फिर डिक्शनरी ऑर्डर लगा दें। पहले हम लगाएंगे स्ट्रिंग लेंथ, पहले हम लगाते हैं स्ट्रिंग लेंथ और देन उसके बाद हम लगाएंगे डिक्शनरी ऑर्डरिंग। अब मेरी बात बन जाएगी। जैसे स्ट्रिंग लेंथ 0 की बात करें तो एक ही एलिमेंट आएगा एप्सिलॉन। स्ट्रिंग लेंथ 2 की बात करें, 1 की बात करें तो पहले a और फिर b। a पहले क्यों आया, क्योंकि स्ट्रिंग डिक्शनरी ऑर्डर लगा दिया मैंने। देन नेक्स्ट आता है 2 लेंथ वाले a
फिर उसके बाद डिक्शनरी ऑर्डर में ए बी आएगा, फिर बी ए आएगा और फिर बी बी आएगा। 3 लेंथ वाले इसी तरीके से प्रोड्यूस होंगे, ए बी, ए बी ए बी बी, देन बी ए बी ए एंड देन बी बी बी। इसी तरीके से मैं आगे भी जनरेट करता चलूंगा। ऑलराइट, अब ये जो मेथड है ये प्रॉपर इन्यूमरेशन मेथड है। इन्यूमरेशन मेथड तो वो भी था, लेकिन हमें क्या चाहिए था, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में मैं क्लियरली बता पाऊं मेरा एलिमेंट कब प्रोड्यूस होगा। अब आप मुझे कोई भी स्ट्रिंग दो, मैं बहुत क्लियरली बता पाऊंगा वो स्ट्रिंग कब जनरेट होगी। मान लीजिए मैं आपको 5 लेंथ की स्ट्रिंग देता हूं, बी ए बी, तो आप क्या करेंगे, कैसे पता लगेगा कब जनरेट होगी? पहले लेंथ 0 वाले जनरेट होंगे, फिर लेंथ 1 वाले जनरेट होंगे, लेंथ 2 वाले, लेंथ 3 वाले, फिर लेंथ 4 वाले और फिर 5 लेंथ वाले, और इसका फिर डिक्शनरी ऑर्डर 5 लेंथ में कितना बनता है उस बेसिस पे आप इंडेक्स बता सकते हैं, और वही इंडेक्स विल बी द मैपिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसलिए सिग्मा स्टार काउंटेबल है, द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, द यूनिवर्सल लैंग्वेज इज काउंटेबल। और ये बोलने के बाद हम बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू टीओसी। ठीक है, पर्पस याद रहे, हम प्रूव करने चले हैं इज देयर अ वर्ल्ड बियॉन्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो पहले हम इसके लिए उसको कैसे प्रूव करना है उसको स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, सिग्मा स्टार की बात कर रहे थे हम, तो अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि सिग्मा स्टार मेरा काउंटेबल है। अगर मेरा सिग्मा स्टार काउंटेबल है, ये प्रूव करने के बाद मैं और क्या चीजें प्रूव कर सकता हूं, आइए देखते हैं। अब एक थ्योरम है जो हमें समझ में आनी चाहिए, उसके बेसिस पे फिर मैं बहुत सारी चीजें प्रूव करूंगा। तो पहले थ्योरम क्या कहती है वो समझते हैं। एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल इन्फिनिट सेट, अगर मैं कोई काउंटेबल इन्फिनिट सेट का सबसेट लेता हूं, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल इन्फिनिट सेट इज आइदर फाइनाइट और काउंटेबल इन्फिनिट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर अगेन हम इसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मैं इसको आपको इनफॉर्मल तरीके से समझा देता हूं। कोई भी अगर सेट है वो काउंटेबल इनफाइनाइट है, उसका सबसेट बनाएंगे, या तो उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या उससे कम होंगे, राइट? तो या तो उसमें से आप फाइनाइट एलिमेंट्स निकाल लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए काउंटेबल इन्फिनिट सेट है कोई भी मेरा नेचुरल नंबर्स का, उसमें से अगर 3 नेचुरल नंबर्स में निकाल लेता हूं तो वो एक काउंटेबल फाइनाइट सेट है। लेकिन अगर उसमें से मैं एक और सेट निकालूं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट ऑफ ओड नंबर्स, ठीक है, ये उसके सबसेट्स हैं, तो वो सबसेट्स या तो फाइनाइट काउंटेबल होंगे या इनफाइनाइट काउंटेबल होंगे, क्योंकि आप एलिमेंट्स को कम कर रहे हैं, वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप एक काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में से सबसेट्स बना रहे हैं तो सबसेट्स या तो उससे छोटे होंगे या उसके बराबर होंगे। तो जब आप उसको छोटा कर रहे हैं, या तो आप फाइनाइट सेट बना देंगे उसके अंदर से, ठीक है, या फिर उसके अंदर से आप काउंटेबल इनफाइनाइट सेट बना पाएंगे। ठीक है, मैंने एग्जांपल भी दिया, नेचुरल नंबर्स के सेट में से अगर आप 3 नेचुरल नंबर्स निकालने तो वो फाइनाइट सेट है। अगर आप ओड नंबर्स या इवन नंबर्स निकालें तो वो काउंटेबल इनफाइनाइट है। अगेन दिस इज नॉट अ प्रॉपर प्रूफ, बट दैट इज ऑल्सो नॉट नीडेड विद रिस्पेक्ट टू द गेट एग्जाम। गेट के लिए आपको प्रॉपर प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक इंट्यूशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एवरी लैंग्वेज इज काउंटेबल। दिस इज अ वेरी बिग क्लेम। इसका यूज करके, और जो हमने ये प्रूव किया सिग्मा स्टार इज काउंटेबल, इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अवर फाइनल मिशन ऑफ प्रूविंग दैट देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड द रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, एंड हाउ बिग इज दैट वर्ल्ड, दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। तो अब ठीक है, एवरी लैंग्वेज इज काउंटेबल कैसे प्रूव करें? कोई भी लैंग्वेज की बात करें, दैट विल बी अ सबसेट ऑफ सिग्मा स्टार। हर लैंग्वेज एक सबसेट होगी सिग्मा स्टार का। सिग्मा स्टार खुद जो है काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो जो भी लैंग्वेज होगी वो या तो फाइनाइट होगी या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट होगी। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। अब देखते हैं इससे और क्या समझ सकते हैं। ठीक है, ये प्रूव कर दिया। कोई भी लैंग्वेज, अभी तक हमने जितनी भी लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, कोई भी लैंग्वेज का एग्जांपल ले रहे हैं हम, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विद ए, स्ट्रिंग एंडिंग विद ए, स्ट्रिंग्स containing a, या फिर number of a's is equals to number of p's, right? a raised to power n, b raised to power n, a raised to power n, b raised to power n, c raised to power n, इतने सारे जो भी हमने एग्जांपल करें, ठीक है, a raised to power p where p is prime, a raised to power p where p is composite, जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं वो सब के सब लैंग्वेजेस जो हैं वो काउंटेबल इनफाइनाइट है। ठीक है,
अब एक और चीज प्रूव करते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन्स आर काउंटेबल। अगेन अब हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी ट्यूरिंग मशीन्स हैं वो काउंटेबल हैं। इसको कैसे प्रूव करें? अगर आपने इफ यू हैव अटेंडेड द प्रीवियस सेशन, हमने यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन डिस्कस किया था। यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन की बात जब हमने करी, तब हमने हर ट्यूरिंग मशीन को एज ए स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस सिमुलेटेड टेप के अंदर, जो टेप सिमुलेशंस ऑफ द ट्यूरिंग मशीन रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर, जिस टेप में हमने सारे ट्यूरिंग मशीन्स को वंस एंड जीरोस की फॉर्म में सेव किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने सारे ट्यूरिंग मशीन्स को वंस एंड जीरोस की फॉर्म में एक टेप में स्टोर किया था यूनिवर्सल ट्यूरिंग मशीन के अंदर। तो इसका मतलब क्या है? हर ट्यूरिंग मशीन को हम एज एवरी ट्यूरिंग मशीन is a string of ones and zeros। हर ट्यूरिंग मशीन अगर 1 और 0 का एक स्ट्रिंग है, ठीक है, बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस आर ट्यूरिंग मशीन्स, बट एवरी ट्यूरिंग मशीन इज a string of ones and zeros। अगर मैं बात करूं सारे स्ट्रिंग्स जो वंस एंड जीरोस से प्रोड्यूस होंगे, तो मैं कैसे जनरेट कर सकता हूं? मेरा सिग्मा है 0,1 और सिग्मा स्टार क्या हो जाएगा? 0,1 का स्टार। और जो ट्यूरिंग मशीन्स है, अभी हमने देखा सिग्मा, मैं ट्यूरिंग मशीन पे बाद में जाता हूं, सिग्मा अभी हमने देखा सिग्मा स्टार जो है ये काउंटेबल इंफिनिटी है। सिग्मा स्टार मेरी काउंटेबल इंफिनिटी है, और जो ट्यूरिंग मशीन्स है वो इसका सबसेट है। एवरी टीएम इज ए स्ट्रिंग ऑफ वंस एंड जीरोस, नॉट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ वंस एंड जीरोस आर टीएम्स, वो सबसेट होंगे इसका। तो हमने अभी देखा हर काउंटेबल इंफिनिट सेट का सबसेट या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। इट कैन नॉट बिकम अनकाउंटेबल इंफिनिटी बिकॉज यू आर रिड्यूसिंग द एलिमेंट्स और यू आर कीपिंग द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी। हमने ये प्रूव कर दिया सेट ऑफ ऑल ट्यूरिंग मशीन्स आर काउंटेबल। अगर सारी ट्यूरिंग मशीन्स काउंटेबल हैं, तो अब एक और चीज प्रूव कर सकते हैं हम कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट ऑटोमेटा आर काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल पीडी आर काउंटेबल, सेट ऑफ ऑल एलबी आर काउंटेबल। ये कैसे प्रूव होगा भाई? फाइनाइट ऑटोमेटा एक रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म ऑफ द टीएम है। कैसे? If we are restricting the tape length, then it becomes finite automata. If we are using the tape as stack, then it becomes a PDA. If we are using the tape only in the length of the input, then it becomes an LBA. That is called linear bounded automata. तो सभी के सभी ऑटोमेटा जो भी हमने डिस्कस किए, ये सभी के सभी इसके रेस्ट्रिक्शन से बनते हैं। जब सारे के सारे ट्यूरिंग मशीन्स काउंटेबल इंफिनिट है, ये सब उसका सबसेट है, तो ये भी सारे के सारे क्या होंगे? काउंटेबल इंफिनिट होंगे। ये सारे के सारे क्या होंगे? काउंटेबल इंफिनिट होंगे। ये भी काउंटेबल इंफिनिट, ये भी काउंटेबल इंफिनिट। अब अगर हमने ये बोल दिया, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस आर आल्सो काउंटेबल? क्यों? क्योंकि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे काउंटेबल इनफाइनाइट है, दैट इज काउंटेबल इंफिनिट और काउंटेबल, अगर फाइनाइट ऑटोमेटा मेरे काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट किसको करते हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस को। तो सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस भी तो काउंटेबल हो गए। इसी तरह से सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस आर काउंटेबल। इसी तरीके से सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस आर काउंटेबल। इसी तरह से सेट ऑफ रिकर्सिव और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर काउंटेबल बिकॉज टीएम्स आर एक्सेप्टिंग रिकर्सिव एंड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। तो यही मैंने बोला है अगली स्लाइड में कि the following set of languages are countable, regular languages are countable, then deterministic context free languages are countable, context free languages are countable, context sensitive languages are countable, recursive languages are countable and recursive enumerable languages are also countable। जितने लैंग्वेज हमने डिस्कस करे उन सबका सेट काउंटेबल है। देखिए हमने दो चीजें प्रूव करी हैं, हर लैंग्वेज अपने आप में काउंटेबल है, दैट इज उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल रहेगा अपने आप में। हर लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज आप उठा लो, वो काउंटेबल रहेगी। पहली बात हमने ये प्रूव करी, और अब हमने प्रूव कर दिया सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, सेट ऑफ डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, सेट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस, और ये सब सेट ऑफ रिकर्सिव लैंग्वेजेस एंड सेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ऑल दीज आर काउंटेबल। ये अब हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, राइट? तो अभी हमें क्या पता लगा? जो हमने चोम्स्की हायरार्की में देखा था, हमने 6 लैंग्वेजेस बनाए थे, लास्ट लैंग्वेज जो था मेरा रिकर्सिव इन्यूमरेबल था, तो ये पूरा जो सेट है ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। राइट? तो हमारा जो हमें प्रूव करना था, इज देयर अ वर्ल्ड बियॉन्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, उसका एक पार्ट हमने खत्म किया। हमने पहले तो ये प्रूव किया जो हम जानते हैं वो काउंटेबल इनफाइनाइट है।
ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या बोल रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल। मतलब जितने भी लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड के अंदर वो अनकाउंटेबल है। अभी तक हम काउंटेबल इंफिनिटी की बात कर रहे थे, पहली बार हम अनकाउंटेबल सेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने बात की जो सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, दिस सेट इज गोइंग टू बी एन अनकाउंटेबल सेट। मतलब वर्ल्ड में जितने लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करते हैं सबके सबका अगर हम सेट बना दें तो वो क्या होगा, एक अनकाउंटेबल सेट होगा। पहले वाला क्या था, काउंटेबल। अब इसको कैसे समझे, पहले तो ये समझते हैं लैंग्वेजेस कैसे जनरेट होंगी। सिग्मा स्टार को अगर हम लिखें तो सिग्मा स्टार में एप्सिलॉन आ गया, ए आ गया, बी आ गया, ए बी आ गया, बी ए आ गया, बी बी आ गया, और कौन रह गया, ए बी बी ए रह गया। ठीक है, एंड सिमिलरली ऐसे ही चलते रहेंगे। ये मेरा सिग्मा स्टार है। अगर मुझे लैंग्वेजेस प्रोड्यूस करने हैं, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस अगर हमें समझना है तो वो कोई भी लैंग्वेज इसका सबसेट होगी। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज जो है इसका सबसेट होगी। आप इसमें से मान लो 3 स्ट्रिंग्स ले लें, आप इसमें से 4 स्ट्रिंग्स ले लें, आप इसमें से 5 स्ट्रिंग्स ले लें, आप इसमें से इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स ले लें, हर लैंग्वेज जो होगी वो इसी का एक सबसेट होगी। बट अगर मैं बात करूं, मैं सारे सेट ऑफ लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, अगर मुझे ये चीज रिप्रेजेंट करनी है, अगर मैं कह रहा हूं कि सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, वो क्या चीज होगी, वो क्या होगी। अगर मुझे एक वो सेट बनाना है तो वो बेसिकली, डोंट यू थिंक इट विल बी अ पावर सेट ऑफ दिस, दैट इज 2 raised to power सिग्मा स्टार। कैसे कैसे, क्योंकि set of all languages will be all the subsets of sigma star। sigma star के आप जितने सबसेट बना सकते हैं वो सारे के सारे आप set of all languages के अंदर चले जाएंगे। set of all languages ऐसे ही बनेगी जितने इसके सबसेट्स आप बना सकते हैं, that is 2 raised to power sigma star, that is the power set of sigma star। मतलब आपके पास ऑप्शन है, पहली स्ट्रिंग को ले ना लें, सेकंड स्ट्रिंग को ले ना लें, थर्ड स्ट्रिंग को ले ना लें, फोर्थ स्ट्रिंग को ले ना लें, इस तरीके से। तो फिर से थ्योरम है, द पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल इन्फिनिट सेट इज अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल इन्फिनिट सेट अगर मेरे पास है, दिस इज सिग्मा स्टार, उसका जो पावर सेट है वो हमेशा क्या देगा, क्या रहेगा, अनकाउंटेबल, दैट इज अनकाउंटेबल इन्फिनिटी। ठीक है, या तो हम इस थ्योरम से ही बात समझ सकते हैं, हम इसको डायगोनलाइजेशन से भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम इसके बाद करने वाले हैं। लेकिन आपको ये बेसिक पॉइंट समझ में आना चाहिए, द पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल इन्फिनिट सेट इज अनकाउंटेबल। एक काउंटेबल इन्फिनिट सेट का जो पावर सेट होगा वो अनकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए काउंटेबल इन्फिनिट सेट इज गोइंग टू बी अ अनकाउंटेबल सेट। और इसी से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस तो सिग्मा स्टार का पावर सेट होगी। ये काउंटेबल इंफिनिट है तो सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस मेरी क्या हो गई, अनकाउंटेबल होगी। मतलब एक अनकाउंटेबल इंफिनिटी है तो जितनी लैंग्वेजेस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं वो अनकाउंटेबल है, जितनी लैंग्वेजेस हमने पढ़ी हैं वो क्या है, काउंटेबल है। ठीक है, अभी हम वहीं जा रहे हैं जहां हमने स्टार्ट किया था, व्हाट हाउ बिग इज द वर्ल्ड आउटसाइड रिकर्सिव इनहेरिटेबल लैंग्वेजेस। बट इसको एक बार थोड़ा सा और अच्छे से एक अलग तरीके से प्रूव करते हैं डायगोनलाइजेशन के थ्रू। देखिए, डायगोनल इसको हम प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। डायगोनलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम सारे स्ट्रिंग्स को हॉरिजॉन्टली लिख दे रहे हैं, एप्सिलॉन ए बी ए बी बी ए बी बी ट्रिपल ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन, और इसके बाद 3 लेंथ स्ट्रिंग्स। दिस इज एन इनफाइनाइट, दीज आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स। ये चीज काउंटेबल इंफिनिटी है, ये जो चीज है मेरी काउंटेबल इंफिनिटी है। और मैं ये मान लेता हूं एक बार के लिए कि जो मैं लैंग्वेजेस प्रोड्यूस करूंगा वो सब क्या होंगी, इसका सबसेट ही होंगे, राइट। ये भी नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, दिस इज 1 लैंग्वेज 2 लैंग्वेज 3 लैंग्वेज अप टू 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस इज आल्सो गोइंग अप टू इंफिनिटी। मैं ये मान लेता हूं ये सेट मेरा काउंटेबल इंफिनिटी है, ये भी मेरा काउंटेबल इंफिनिटी, ये भी मेरा काउंटेबल इंफिनिटी। मैंने मान लिया, ये तो ऑलरेडी प्रूवन है, ये काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है सिग्मा स्टार। अब ये जो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, एक बार के लिए मैंने मान लिया ये काउंटेबल इंफिनिटी है। ठीक है, मैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करूंगा, ये काउंटेबल इंफिनिटी ना होकर अनकाउंटेबल इंफिनिटी बनेगा। बट एक बार के लिए मान लेते हैं काउंटेबल इंफिनिटी। और हर लैंग्वेज को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एज ए स्ट्रिंग ऑफ 1s एंड 0s। मान लीजिए कि लैंग्वेज 1 के अंदर एप्सिलॉन ए और बी आते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1 में भी, और बाकी सब 0 होंगे।
ठीक है, मान लीजिए तो वंस रिप्रेजेंट्स वो वाली स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में आती है, जीरो रिप्रेजेंट्स वो वाली स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में नहीं आती है, आगे भी जीरोज ही होंगे। अभी मैंने एक स्नैपशॉट दिखाया है आपको इस मैट्रिक्स का। मान लीजिए लैंग्वेज 2 है मेरी, स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, तो उसको कैसे दिखाएंगे? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से आप बाकी के लैंग्वेजेस को भी लिख सकते हैं। सेट 3 भी है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मान लीजिए सिर्फ बीबी आता है और मान लीजिए ए आता है, बाकी सब 0 0 0 है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से आप बाकी के लैंग्वेजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। हर लैंग्वेज में अगर मैं इस लैंग्वेज का डायगोनल देखता हूं, इस मैट्रिक्स का डायगोनल देखता हूं, ये डायगोनल है, ठीक है। डायगोनल पे एलिमेंट्स होंगे, या तो 1 होगा या 0 होगा, 1 होगा 0 होगा, 1 होगा 0 होगा, 1 होगा 0 होगा, 0 0 1 0, मान लीजिए कुछ भी लिखा है। अब मैं बोल रहा हूं एंड दिस डायगोनल इज आल्सो गोइंग टू बी एन इनफाइनाइट डायगोनल, बिकॉज इनफाइनाइट मैट्रिक्स है तो डायगोनल भी इनफाइनाइट होगा। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप इस डायगोनल का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट। 1 को आप रिप्लेस कर दीजिए 0 से, 0 को 1 से, फिर 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, 1 को 0 से, 0 को 1 से, एंड सो ऑन, ठीक है। ये डायगोनल जो है ये भी एक तरीके से मेरे को क्या दिखा रहा है? एक स्ट्रिंग, एक लैंग्वेज, ठीक है ना। ये डायगोनल का लेंथ भी तो यही है ना, उतने ही लैंग्वेजेस आ जाएंगे, उतने ही स्ट्रिंग्स, हर स्ट्रिंग के लिए डायगोनल पे एक वैल्यू होगी। मैं बोल रहा हूं कि एक लैंग्वेज मैंने ऐसी निकाली जो हर स्ट्रिंग का, हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। 1 का 0, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो क्या आप ये बात मानते हो कि ये जो लैंग्वेज मैंने लिखी है, ये लैंग्वेज जो मैंने यहां पर जो लैंग्वेज लिखी है, इसके अंदर क्या हो रहा है? कॉम्प्लीमेंट हो रहा है हर चीज का। जैसे 1 का 0 हो गया, 0 का 1 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये वाली जो लैंग्वेज है मैंने यहां पर लिस्ट ही नहीं करी है। कैसे बोल सकता हूं ये बात? क्योंकि ये लैंग्वेज हर लैंग्वेज से एटलीस्ट एक एलिमेंट पे डिफर करेगी। लैंग्वेज 1 से ये यहां पे डिफर करेगी, लैंग्वेज 2 से ये, लैंग्वेज 2 से यहां डिफर करेगी, लैंग्वेज 3 से यहां, लैंग्वेज 4 से यहां, लैंग्वेज 5 से यहां पे, 5x5 पे, 6,6 पे। हर लैंग्वेज से एक एलिमेंट डिफरेंट होगा, और अगर वो एक एलिमेंट डिफरेंट है तो किसी भी लैंग्वेज से ये मैच नहीं करेगी। हर लैंग्वेज से एटलीस्ट एक एलिमेंट पे डिफर करेगी। दैट मींस दिस लैंग्वेज हैज नॉट बीन लिस्टेड। मैंने तो सारी लैंग्वेज लिस्ट किए थे, एक लैंग्वेज छूट गया है, सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो अगेन जो मेरा assumption था ये काउंटेबल इंफिनिटी है, विच इज प्रूवन रॉन्ग। दिस इज एन अनकाउंटेबल इंफिनिटी। मेरा जो assumption है वो गलत प्रूव हो गया। ये जो है एक अनकाउंटेबल इंफिनिट सेट निकला। ऑलराइट, जो assumption है वो मेरा गलत प्रूव हो जाता है। ये एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है जो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। ये डायगोनली जो लैंग्वेज बन रही है वो लैंग्वेज कॉम्प्लीमेंट करने के बाद अभी तक लिस्ट नहीं हुई है। मेरा assumption गलत प्रूव हो जाता है और ये सेट निकलता है अनकाउंटेबल इंफिनिटी। तो इसे प्रूव हो गया सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दो काउंटेबिलिटी के प्रॉब्लम्स की, जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। गिवन S1 एंड S2 आर काउंटेबल, वी हैव टू प्रूव S1 यूनियन S2 इज काउंटेबल, एंड वी आल्सो हैव टू प्रूव S1 क्रॉस S2 इज काउंटेबल। हम एक यहां पे करेंगे S1 क्रॉस S2, आप अपने आप से सोचेंगे कैसे करना है। S1 यूनियन S2 हम कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम S1 यूनियन S2 काउंटेबल है ये प्रूव करना है हमें, तो हम कैसे प्रोसीड करें? वी हैव टू प्रूव S1 यूनियन S2 इज काउंटेबल। कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, हमें इन्यूमरेशन मेथड देना पड़ेगा। कैसे देंगे? S1 और S2 दोनों काउंटेबल हैं। अगर मैं बोलूं S1 मेरा काउंटेबल सेट है और S2 भी मेरा काउंटेबल सेट है, S1 के एलिमेंट्स को मैं मान लेता हूं A1, A2, A3 अप टू AN। सिमिलरली S2 के एलिमेंट्स को मैं मान लेता हूं B1, B2, B3 अप टू BN। इस तरह से मैं इन एलिमेंट्स को लिख सकता हूं, ये दोनों सेट्स को। अब मुझे S1 यूनियन S2 की बात करें तो दोनों का क्या हो जाएगा? यूनियन हो जाएगा। मुझे इन्यूमरेशन मेथड देना है, कैसे उस एलिमेंट्स को जनरेट करूं और कब कोई एलिमेंट आएगा मैं बहुत इजीली फाइनाइट स्टेप्स में बता पाऊं। तो कैसे करेंगे? हम पहला एलिमेंट A1 एक सेट का लेंगे, फिर इस सेट का फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, फिर इस सेट का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट लेंगे, दैट इज A2। दैट इज A1 हो चुका है,
देन हमारे पास में आता है A2, देन सॉरी पहले आया B1, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, लेट्स से दिस इज B1, then we write A2, then B2, then A3, then B3 and so on and so forth. तो क्या मैं बता सकता हूं फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कि कोई एलिमेंट कब आएगा? अगर आपसे कोई पूछे कि B4 कब आएगा, 8th नंबर पे आएगा, क्योंकि पहले A1 आएगा, फिर B1, फिर A2, B2, A3, B3, A4, B4, तो डबल इंडेक्स हो जाएगा, B के लिए डबल इंडेक्स हो जाएगा। ऑलराइट, तो आप इजीली क्लियरली बता सकते हैं कब कोई एलिमेंट आने वाला है। तो अगर आप इन्यूमरेशन मेथड दे पाए और आप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में कब कोई एलिमेंट जनरेट हो पा रहा है अगर आप बता पा रहे हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि एक सेट काउंटेबल है। तो हमने ये प्रूव किया S1 यूनियन S2 इज काउंटेबल। ठीक है, तो आप एज ए होमवर्क आप देखिए S1 क्रॉस S2 भी काउंटेबल है, क्या ये आप प्रूव कर पाएंगे? ये आपका हो गया होमवर्क। ठीक है, ऑलराइट, तो अभी तक मैंने क्या प्रूव कर दिया है? मैंने ये प्रूव किया कि एवरी लैंग्वेज इन इटसेल्फ इज काउंटेबल इन्फिनिटी, इज काउंटेबल, आइदर इट इज फाइनाइट और काउंटेबल इन्फिनिटी। नंबर ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस आर काउंटेबल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल है और रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस मेरे काउंटेबल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? There are languages beyond recursive enumerable languages, yes or no? ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस मेरे अनकाउंटेबल है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस काउंटेबल है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? देयर आर लैंग्वेजेस बियॉन्ड रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। बहुत इजीली बोल सकता हूं। ठीक है, अब वो लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल हैं, ये प्रूफ बचा है बस, अदरवाइज वी हैव प्रूवन एवरीथिंग। ठीक है, तो वही हमारा लास्ट पॉइंट है, उसको प्रूव कर ले। The set of all languages, set of languages that are not recursive enumerable, this set is uncountable. जो languages, set of all languages that are not recursive enumerable is uncountable, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, इसमें अभी हमने S1 यूनियन S2 वाला जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो यूज होगा, एंड थ्रू दैट यू विल बी एबल टू प्रूव। तो अभी हम क्या जानते हैं? रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस काउंटेबल है। ठीक है, सेकेंड हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस का जो सेट है, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि देयर आर लैंग्वेजेस विच आर नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल, विच आर नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल, ये चीज मैं बोल सकता हूं। अब बस ये प्रूव करना बचा है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, अगेन इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ठीक है, अगर मैं सारे लैंग्वेजेस की बात करूं, उसको मैं अगर एक सेट मान लेता हूं, सारे लैंग्वेजेस को मैं एक सेट मान लेता हूं, और मैं ये बोलूं दीज आर रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, दीज आर नॉट रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, एंड दिस एंटायर सेट इज अनकाउंटेबल बिकॉज दिस इज द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। ये मेरा काउंटेबल सेट है, ये मेरा काउंटेबल सेट है। सो ऑल द लैंग्वेजेस का जो, सारी लैंग्वेजेस का जो सेट है वो रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस यूनियन नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, ये बनता है। सारे जो लैंग्वेजेस का सेट है वो कैसे बनेगा? रिकर्सिव इन्यूमरेबल यूनियन नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस, इन दोनों का अगर आप यूनियन कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सारे लैंग्वेजेस का सेट जो कि अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो एक बार के लिए अगेन मैं इसको भी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से करूंगा। एक बार के लिए मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि नॉन रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस भी काउंटेबल हैं। ये मेरा सेट S1 है, ये मेरा सेट S2 है। S1 काउंटेबल, S2 काउंटेबल, S1 यूनियन S2 क्या बन जाएगा? काउंटेबल। अभी हमने प्रूव किया। तो अगर S1 भी काउंटेबल, S2 भी काउंटेबल, S1 यूनियन S2 भी काउंटेबल, लेकिन S1 यूनियन S2 यहां पे हमें दिख रहा है अनकाउंटेबल है, इसका मतलब मेरा एजम्पशन जो कि मैंने ये मान लिया था कि S2 काउंटेबल है वो गलत है। S2 क्या है? अनकाउंटेबल है। ये एजम्पशन गलत था, इसलिए हमारे को कॉन्ट्राडिक्शन मिला। अब हमने प्रूव कर दिया S2 जो है वो अनकाउंटेबल है। तो सारी चीजें जो हमें प्रूव करनी थी हम बहुत इजीली कर पाए। हमने पहले ये देखा कि सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज काउंटेबल। देन हमने देखा
सॉरी, सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल, हमने देखा। ठीक है, वापस से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से सुनिए। अभी तक हमने देखा सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इज अनकाउंटेबल, फिर हमने देखा सेट ऑफ रिकर्सिव इन्यूमरेबल लैंग्वेजेस इज काउंटेबल, सो देन द सेट ऑफ languages which are not recursive enumerable is uncountable. So there is a world beyond recursive enumerable languages. This is non-recursive enumerable languages, and these languages are, the set of these languages is uncountable. All right. So that's all about this session. All right. So what we saw in this session is, first of all, we saw how to prove something is, a set is countable infinite. Then we saw how to prove a set is uncountable infinite through diagonalization. All right. Then we saw the set of any language in itself is countable infinite or finite. Then we saw that the set of recursive enumerable languages is countable. Then we saw that the set of all languages is uncountable, and through that we proved that the set of all non-recursive enumerable languages is uncountable. That's what we saw in this session. All right. So that's what we have proven, and now we have completed the topic of countability today. In the next session, we'll be talking about Chomsky hierarchy in detail. Given a language, how would you identify the class of that language, right? That we will see in the next session. This is a very, very important session in all the GATE exams. If you see the previous year papers, you will find at least 1 to 2 questions on this topic, right? So I'll see you guys in the next session.